मदर टेरेसा, गरीबों की मसीहा। For mother, it's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. A global icon. She was a small, tiny, bent woman. Abortion has become the greatest destroyer of peace because it destroys the presence of God. One of the most influential women of 20th century. All the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. Mother Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. और अपने मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी। Teresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus. लेकिन क्या उनकी कहानी उनकी लेगेसी को जस्टिफाई करती है? Not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. क्या मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया जाना चाहिए था? While the bank account was getting higher and higher, the funds didn't find their way out into the poor. क्या वो सच में लोगों की मसीहा थी? Because I feel that Sister Teresa is a walking saint. If I'm in this group, that I will come closer to God. या फिर एक शैतान जिसे गरीबों की पीड़ा देखकर मजा आता था? তারা তুমি মা আমার চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা। डॉक्टर जैक ब्रेगर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। वो 1972 से कलकत्ता में गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे थे। उन्होंने मदर टेरेसा को पहली बार बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में देखा था। How many of them are, Mother? Here in this area we have got about 400. These very bad cases or not? एंड ही वाज इम्प्रेस्ड। एंड जब मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया और तुरंत उन्हें मालूम पड़ गया जो मदर टेरेसा के बारे में दुनिया भर में दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। A great deal more should have been done in terms of modern medical care. The defense always was, we're not a medical order. डॉक्टर ने देखा मदर टेरेसा के आश्रम में मेडिकल केयर की कोई व्यवस्था नहीं थी। All the patients had shaved heads. There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. एक इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। कई इंजेक्शन को धार तक नहीं होती थी। They used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she says, "There's no point. There's no time." डॉक्टर कहते हैं एक बार एक औरत जली हुई हालत में वहां आई और उसे पेन किलर तक नहीं दिया गया। There was one young woman with terrible burns and no painkillers. We managed to get morphine and smuggled the morphine into this woman and helped her with her pain. बच्चे जो सब्जियों की तरह एक के साथ एक रखे होते थे, सिस्टर्स उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी। Mother would tell us that we could pick up the babies to feed or to change them, but when the feeding or changing was done, we must immediately put those babies down, as holding a baby could lead to attachment. कई बच्चों को बेड से बांध दिया जाता था। मदर टेरेसा को पूरी दुनिया से मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, बट स्टिल मदर टेरेसा इन हाउसेस को मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर रही थी। Had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics and he actually needed an operation. And she said, "Well, they won't take him to hospital." And I said, "Why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation." She said, "They don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody."
And I thought, but this kid's 15. मदर टेरेसा ने उस 15 साल के बच्चे को मरने दिया जो एक साधारण मेडिकल ऑपरेशन से बच सकता था। मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था कि वो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चला सकती थी इन पीड़ितों के लिए, इन गरीबों के लिए, लेकिन मदर टेरेसा ने ऐसा नहीं किया। और जब मदर टेरेसा से कुछ लोगों ने सवाल किया उनके इन अनकन्वेंशनल के तौर तरीकों के बारे में, तो उन्होंने कहा था, social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. मदर टेरेसा को दुनिया भर से न केवल पैसा डोनेट होता था बल्कि मेडिकल सप्लाईज तक भेजे जाते थे, लेकिन उन्होंने उन मेडिकल सप्लाईज को कभी यूज नहीं किया। सफरिंग, पीड़ा मदर टेरेसा का स्पिरिचुअल मिशन का काइंड ऑफ आधार था। 1984 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुए गैस लीक के कारण भोपाल में 2500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और लाखों लोग इन गैस के प्रभाव में आन पड़े। इट वॉज ए ट्रेजेडी। लोग बड़ी दर्दनाक हालत में मर गए। लोग रास्ते पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट दिस मल्टीनेशनल कंपनीज। और पता है मदर टेरेसा ने इस ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा? दिस लेडी, इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा कि हजारों लोग दर्दनाक पीड़ा से मर गए। मदर टेरेसा को लोगों को पीड़ा में देखकर मजा आता था। मिशनरी ऑफ चैरिटी में 20 साल एज ए नन काम कर चुके मेरी जॉनसन ने मदर टेरेसा का कल्ट छोड़ा और इस कल्ट को छोड़ने का कारण उन्होंने अपनी किताब में लिखा। और जब मैंने वो किताब पढ़ा आई वॉज शॉक्ड। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में इन नन्स की जिंदगी बेहद कठिन होती थी। इन्हें पॉवर्टी में जीने कहा जाता था। नन्स को भीख मांगने भेजा जाता था, जबकि मदर टेरेसा के पास दुनिया भर का पैसा था। Eating whatever was begged or received, often including spoiled food. We used to have every day a bread and oil, and these things that we got from the begging couldn't swallow it. We were eating it. नन्स को केवल 2 जोड़े कपड़े दी जाती थी और नन्स को हफ्तों हफ्तों तक नहाने तक नहीं दिया जाता था। कोई भी नन अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। उन्हें ना टीवी देखने दिया जाता था, ना न्यूज़पेपर पढ़ने दिया जाता था। उन्हें बाहरी लोगों से बात करने की अनुमति नहीं थी, अपने परिवार से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। All communication with the outside world, except that once a month home letter, was prohibited, including talking with lay co-workers about anything other than work. Limiting contact with family to once a month letters and 2 weeks of home visits once every 10 years. She was not allowing us to be. इन नन्स को अपने कमर और सर पर नुकीले तारों की चेन पहने रखने कहा जाता था ताकि वो पीड़ा सहती रहे। There was a thing called discipline in Missionary of Charity. Can you explain the discipline? We had a little kind of sort of a rope whip with which we would beat ourselves every day. नन्स को रोज अपने आप को कोड़े मारने कहा जाता था। पर क्यों मदर टेरेसा लोगों को पीड़ा में देखना चाहती थी जबकि उनके पास पीड़ितों के लिए इलाज करने के लिए पैसा था? क्यों मदर टेरेसा इन मासूम औरतों को डिसिप्लिन के नाम पर पीड़ा दे रही थी? क्यों? To have that very close contact with Christ in the Blessed Sacrament, because Jesus in the appearance of bread and Jesus in the appearance of the broken bodies of our poor is the same Jesus. ये सुनने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल उठे और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। उससे मुझे ये पता चला मदर टेरेसा चाहती थी कि ये नन अपने आप को कोड़े मार के पीड़ा सहे या पीड़ित और भी पीड़ा सहे। पता है क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पर लटक कर हमारे पापों के लिए असीमित पीड़ा सही थी। मदर टेरेसा का जन्म स्कॉर्पियन मैकडोनिया में हुआ था इन 1910। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उसकी माँ एक रिलीजियस महिला थी और उसके पिता एक बिजनेसमैन थे एंड दे वर हैप्पी फैमिली। लेकिन यह समय बेहद कठिन था। हर रोज सैकड़ों लोग आजादी के लड़ाई में मारे जा रहे थे और इसी आजादी के लड़ाई के दौरान एग्नेस के पिता के दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी और एग्नेस का हंसता खेलता परिवार बिखर गया। एग्नेस तब केवल 8 साल की थी और अब 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी एग्नेस की मां पर आन पड़ी। इस परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था, लेकिन एग्नेस के रिलीजियस मां को जीसस क्राइस्ट पर बेहद विश्वास था और यही विश्वास एग्नेस के मन में भर रहा था। एग्नेस मेंटली और इमोशनली क्रैश के रेडिकल सोर्स हो गई।
उसे उस कैथोलिक चर्च में जीसस क्राइस्ट के सैक्रिफाइसेस के कहानी सुनाई गई। ईश्वर ने संसार को रचने के बाद सबसे आखिर में इंसान को बनाया। ईश्वर को इंसान बेहद प्रिय था, लेकिन इंसानों ने जब पाप करना शुरू कर दिया, ईश्वर इंसानों से दूर चले गए, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। और जब इंसानों का पापों का घड़ा भरने लगा, तब ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र जीसस को हमें बचाने भेजा। मेडोलिन्स में एक अनोखे बच्चे ने एक वर्जिन औरत के कोख में जन्म लिया। वो बच्चा जीसस था। केवल 12 साल के उम्र में जीसस धार्मिक शिक्षाओं से ज्यादा ज्ञान रखता था। 30 साल के उम्र में जीसस ने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। उसने इंसानों को ईश्वर की लीला से फिर से ज्ञात करवाया। जीसस जहाँ भी जाता वहाँ वो लोगों की मदद करता। जीसस ने अनेक मिराकल किए, अंधे को आंख दी, लंगड़े को पैर। जीसस ने इवन कई मृत लोगों को फिर से जीवित किया और इसी दौरान जीसस को कई लोग फॉलो करने लगे। इन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और ये चीज जूइश लीडर को देखा नहीं जा रहा था और उन्हें जीसस को ईश्वर का पुत्र कहना पसंद नहीं था। जूइश रिलीजियस लीडर्स और रोमन अथॉरिटीज ने जीसस को ईश्वर का निंदा करने की जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मृत्यु का दंड दिया। लेकिन यही तो जीसस चाहते थे और ईश्वर भी। यूनो इंसानों के पापों के कारण ईश्वर इंसानों से दूर चले गए और इंसानों के अब तक किए गए पापों को मिटाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की बलि देना जरूरी था जिसने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप ना किया हो। इसीलिए ईश्वर ने जीसस को धरती पर भेजा ताकि जीसस हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना बलिदान दे सके। लेकिन ये बलिदान भयानक पीड़ा से प्रभुक था। जीसस को रात भर पीटा गया। जीसस को कांटों का ताज पहनाया गया। फिर जीसस पर भयानक कोड़े बरसाए गए। जीसस का शरीर किसी बकरे के समान छिल गया। जीसस को क्रॉस पर लटकाया जाने वाला था और उस क्रॉस को खुद जीसस को घसीटते हुए ले जाने कहा गया। जीसस के हाथों और पैरों को कीलों के माध्यम से क्रॉस पर ठोक दिया गया। जीसस ने असीमित पीड़ा का अनुभव किया। जीसस ने इंसानों के पापों के लिए खुद को निछावर कर दिया। और पता है एग्नेस ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कि अगर ईश्वर के करीब जाना है तो लोगों को पीड़ा एंड सफरिंग सहनी पड़ेगी। We see Christ in the broken body and we touch him, and that touch comes from the deep faith that Christ cannot deceive. It was her obsession with suffering and her obsession that people need to suffer in order to come close to Jesus. The biggest thing that I think that Mother Teresa should maybe be held accountable for is this cult of suffering that she's created. She definitely has a kind of harsh side. गरीबों का गरीब रहना, पीड़ितों का पीड़ा में पड़े रहना और नंस को खुद को पीड़ा पहुंचाना ही ईश्वर का असली सेवा है। वो इन लोगों को क्रॉस पर लटके जीसस से कंपेयर करती थी। लेकिन जितना भी मैंने ईश्वर और जीसस के बारे में पढ़ा, कहीं भी मुझे लिखित नहीं मिला कि ईश्वर के करीब जाने के लिए इंसानों को पीड़ा सहनी चाहिए। जीसस का आखिरी संदेश ये था कि इंसान एक दूसरे से प्रेम करे और अपने आप को पाप करने से रोके। लेकिन जीसस के इस संदेश का पालन करने के बजाय मदर टेरेसा ने ऐसे ऐसे पाप किए कि जिन्हें देख के ईश्वर तो खुश नहीं होंगे। This is the BBC television service. 1969 ये वो साल था जब मदर टेरेसा को वेस्टर्न वर्ल्ड जानने लग गई। 1969 में बीबीसी ने मदर टेरेसा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई एंड जब डॉक्यूमेंट्री बाहर आई तब मदर टेरेसा वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गई। अब मिशनरी ऑफ चैरिटी के सोसाइटीज दुनिया भर में फैलने लगे। इन देशों में नए आश्रम खोले गए। हर साल 15 से 20 आश्रम खोले गए। अनेक देशों से सिस्टर्स मदर टेरेसा के चैरिटी में ज्वाइन करने लगे। बिकॉज मदर टेरेसा वाज ऑलवेज सेज All our works are done for the love of God. For the love of God. Mother Teresa was loved by so many people that the world was in shock. The whole world was taking notice. Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace.
After taking Nobel Prize, Mother Teresa began receiving awards from around the world, including Bharat Ratna. And the donation started coming in. न्यूयॉर्क में स्थित मिशनरी ऑफ चैरिटी का एक ब्रांच था, होली घोस्ट। एक पूर्व नन कहती है केवल न्यूयॉर्क के मिशनरी ऑफ चैरिटी के आश्रम को $50 मिलियन मिले थे। $50 मिलियन एक साल में, और पूरे मिशनरी ऑफ चैरिटी को एक साल में $100 मिलियन मिले थे। आप अंदाजा लगाएं मिशनरी ऑफ चैरिटी को इतने सालों में कितने डोनेशन आए होंगे। टू बी ऑनेस्ट, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के पूरे आश्रम में आए डोनेशन का हिसाब लगाया जाए, और वो भी केवल 90 के दशक का, तो अंदाजा $1 बिलियन तक जाता है। बट गेस व्हाट, ये पैसे गरीबों के भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. The famine caused by drought is the worst in living memory, and now the rains have failed again for the third year in succession. इथियोपिया में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे, मदर टेरेसा वाज द वन जो इथियोपिया के इन लोगों से मिलने गई। न्यूज मीडिया ने फिर से एक बार मदर टेरेसा के इस उदारता की तारीफ की। ये उदारता देखकर दुनिया भर से इथियोपिया को भूखमरी से बचाने के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी को डोनेशन भेजे गए। लेकिन जब पूर्व मिशनरी ऑफ चैरिटी के नन सुजन सिल्स ने कहा कि इथियोपिया के लोगों के लिए इतना पैसा आया है, हमें उन्हें भेज देना चाहिए, तब एक सीनियर सिस्टर ने कहा हम अफ्रीका में पैसा नहीं भेजते। फिर ये पैसा उनके मदद के लिए आया था ना, राइट? She did not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. All she was interested in was promotion of her faith and herself. Is not that मदर टेरेसा इन पैसों का मिसयूज कर रही थी, बल्कि वो अरबों रुपए यूज ही नहीं किए। एंड द क्वेश्चन इज स्टिल रिमेन्स कि ये पैसा कहाँ जाता था। द थिंग इज, इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है कि किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजर को अपने अकाउंट पब्लिश करने होते हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने ऐसा नहीं किया था। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री में उनके हाउसेस थे जहां डोनेशन आते थे, वहां भी उन्होंने अपने अकाउंट सीक्रेट रखे थे। मिशनरी ऑफ चैरिटी के फाइनेंस को एक्सपोज करने के लिए एक जर्मन जर्नलिस्ट वाल्टर ने जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला मिशनरी ऑफ चैरिटी के लगभग सारा पैसा वर्टिकन बैंक में जाता है। लेट मी टेल यू, वर्टिकल बैंक हमारे साधारण बैंकों जैसा नहीं है। I mean, ये रोमन कैथोलिक चर्च का खुद का बैंक है। वर्टिकल बैंक को आज भी द मोस्ट कैंडलेस बैंक माना जाता है। Years of life, it has been accused by US and Italian police of money laundering, for the mafia, for a Masonic lodge. There's been suicide and unexplained deaths. पूर्व मिशनरी ऑफ चैरिटी के नन कंफर्म करती है कि दुनिया भर में मिशनरी ऑफ चैरिटी को जितना भी डोनेशन आता है वो इस कैथोलिक चर्च के कैंडलेस बैंक में जमा होता है। I mean, इटालियन ऑथर जियान लुंगी अपने बुक द ओरिजिनल साइन में लिखते हैं कि अगर मदर टेरेसा अपने कैरियर के आखिर में वर्टिकल बैंक से सारा पैसा निकालती तो वर्टिकल बैंक की तिजोरियां खाली हो जाती। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना पैसा मदर टेरेसा इन बैंक में जमा करती थी। ऐसा नहीं था कि मदर टेरेसा को दुनिया भर से आ रहे ये बेहिसाब पैसों से दिक्कत थी। वो चाहती थी और पैसा आए ताकि वो इन पैसों को करप्ट वर्टिकल बैंक में जमा कर सके। और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए मदर टेरेसा तानाशाह, खूनी, चोर चक्कों से दोस्त करने को भी तैयार थी। ऐसा ही और एक बिजनेसमैन था चार्ल्स किटिंग, जिसने मदर टेरेसा को $1.25 मिलियन डोनेट किए थे। एंड नॉट ओनली दैट, मदर टेरेसा ने चार्ल्स किटिंग की प्राइवेट जेट तक इस्तेमाल किए। द थिंग इज, चार्ल्स किटिंग उस वक्त के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस स्कैम को अंजाम दिए थे। T also accepted over $1 million from Charles Keating, whose junk bond debacle caused more than 21,000 old folks to lose their life savings. उसने गरीबों का पैसा लूटा था। चार्ल्स किटिंग को कॉन्विक्ट किया गया, लेकिन जब चार्ल्स किटिंग की कोर्ट में पेशी चल रही थी, मदर टेरेसा ने जज को एक कंट्रोवर्शियल लेटर भेजा जिसमें वो कहती है, डियर ऑनरेबल लाइनसिटो, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि चार्ल्स किटिंग क्या काम करते हैं और ना ही उनके बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता है। मुझे केवल इतना पता है कि उन्होंने हमेशा ईश्वर के बच्चों के प्रति दया और उदारता दिखाई और जब जरूरत पड़ी उन्होंने मदद की। इसी कारण मैं उन्हें ऐसे मोड़ पर भूलना नहीं चाहती जहां वो और उसका परिवार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो। मिस्टर किटिंग ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए मैं ये खत लिख रही हूँ। जब भी कोई मुझे किसी जज से बात करने कहता है तो मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ, मैं उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने कहती हूँ, अपने मन में झांकने कहती हूँ और वो
वो करने कहती हूँ जो जीसस ऐसे परिस्थिति में करते। बेसिकली मदर टेरेसा चार्ल्स कीटिंग को माफ करने कह रही थी। सो जब ये खत पब्लिक प्रोसिक्यूटर पॉल ने पढ़ा, ही वॉज शॉक्ड। उन्होंने मदर टेरेसा को रिटर्न लेटर लिखा, डियर मदर टेरेसा, मैं लॉस एंजलिस कंट्री के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ और आपके दान देने वाले चार्ल्स कीटिंग की प्रोसिक्यूटर। मैंने आपका लेटर पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर चार्ल्स कीटिंग 17,000 लोगों से $252 मिलियन चुराने के जुर्म में दोषी पाए गए और फ्रॉड मनी उनके एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है। चार्ल्स के विक्टिम बेहद गरीब हैं। आप एक बार अपने आप से पूछिए कि इस परिस्थिति में जीसस क्या करते जब उन्हें मालूम पड़ता जो पैसे उन्हें दिए गए हैं वो गरीबों से लूटा गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ चार्ल्स कीटिंग से लिया हुआ पैसा उनके राइटफुल ओनर्स को वापस कर दें। सिंसियरली पॉल टोरले। मदर टेरेसा डिड नॉट रेस्पॉन्ड और ना ही उन्होंने चार्ल्स कीटिंग से लिया हुआ पैसा वापस किया। शी वाज ए हिपोक्रेट। मदर टेरेसा दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती थी, वो गरीबों के लिए अपना जीवन व्यतीत करती है और दूसरे और उस गुनहगार को माफ करने कहती है जिसने गरीबों से पैसा चुराया। चार्ल्स कीटिंग के दुनिया भर में रिच एंड पावरफुल लोगों से कनेक्शन था और उनके थ्रू मदर टेरेसा को डोनेशन मिलते थे। मदर टेरेसा के लिए कुछ भी एनफ नहीं था। शी वांटेड मोर एंड मोर मनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मदर टेरेसा एक मिशनरी थी और मिशनरी का काम होता है दुनिया भर में घूमकर लोगों को ईश्वर की लीला सुनाना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। लेकिन मदर टेरेसा ने धोखे से लोगों को कन्वर्ट किया। उन्हीं से सुन लीजिए। Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it. Because St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. So you are telling me, आप इन मौत के दहलीज पर खड़े हैं, कमजोर लोगों को कह रही है कि अगर स्वर्ग जाना है तो कन्वर्ट हो जाओ। आपने उन्हें भीख मांगा हुआ खाना और 5x5 की जगह दे दी, तो क्या आप उन्हें कन्वर्ट करेंगी? और इनमें से कई लोग कुछ बोलने और करने के भी हालत में नहीं होते थे। ये कैसा कन्वर्जन हुआ? कन्वर्जन तो दिल से होना चाहिए। ये तो धोखा है। आपने इन्हें स्वर्ग का टिकट तो दे दिया, लेकिन एक पेन किलर नहीं दी। व्हाट शी इज साइकोपैथ? आई डोंट नो। लेकिन मुझे इतना पता है कि मदर टेरेसा जैसे लोगों को संत तो नहीं मानना चाहिए। What did you say? Bless you, my mother. We shall follow you. Thank you.